there are I mean, two keywords which are important and which we must know. Those two words are, the first word is, there is something called as, सर uh, सर जब ये चैप्टर खत्म होगा तब सर आप एक डाउट क्लास सॉरी, हेलो, क्या बोल रहे हो? सर एक डाउट क्लास ले सकते हैं जब ये चैप्टर खत्म होगा हाँ, ऑब्वियसली लेता ही हूँ. There is something called equivalent point, equivalent, equivalence point, ठीक है. And there is another thing called end point, end point of titration, ठीक है. Equivalence point of titration. और see, equivalence point का मतलब होता है, end point of titration and equivalence point of titration. End point of time, equivalence point of titration ये जो होता है, the point or the amount of इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि ऊपर से हम लोग टाइट्रेंड जो ऐड कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस जब एग्जैक्टली टाइट्रेंड के एनालिट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस के बराबर होते हैं, ठीक है ना, बराबर हो जाता है, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट. तो बेसिकली हम सर ऊपर से टाइट्रेंड को पावर इन कर रहे हैं, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप पावर इन कर रहे हैं, और एनालिट अंदर पड़ा हुआ है. एक a time will come when the equivalence of titrant will become exactly equal to the equivalence of analyte present in the flask, ठीक है. And at that point the reaction will become complete. That is the point when the reaction will become complete, and uh, that point is known as equivalence point, ठीक है. So basically technical terms में, titration के terms में, we can say that uh, the amount of equivalence point indicates the amount or the number of equivalents of titrant which is required to completely consume the analyte or titrant in a titration process, ठीक है. सर तो जो ब्यूरेट में जो सोल्यूशन है सर वो हाँ, अलग सोल्यूशन है ना हाँ, ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन रहेगा वो अलग सॉल्यूशन रहेगा और ये अलग सॉल्यूशन रहेगा. जैसे इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें से एक जो होगा, यानी ये अगर जो है, ये हमारे ब्यूरेट में फ्लास्क में रहेगा, और हो सकता है ये दूसरा वाला जो है वो ब्यूरेट में रहेगा, ये फ्लास्क में रहेगा, ये ब्यूरेट में रहेगा, या फिर ये फ्लास्क में रहेगा, ये ब्यूरेट में रहेगा. इज इट ओके? यस सर Can you repeat this part once?
ओके सी, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ. ओके, the equivalence point amount solution needed to completely consume diagram with titrant or analyte Once it's finalized, maybe I'll just ask you. अगर ये अपने का ओके आ जाता है हाँ उसके नहीं उसके और कुछ नहीं the amount of titrant needed to completely consume the titrant present in the flask gives the equivalence. में उसको हो जाना चाहिए ना अभी कुछ नहीं So the key concept over here in equivalence point is that number of equivalence, the point or the volume at which the number of equivalence of titrant and titrant becomes equal. ठीक है, जब ये चीज अचीव होता है या फिर जिस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के लिए ये चीज अचीव होता है, दैट वॉल्यूम इज नोन एज इक्विवेलेंट पॉइंट. यहाँ पे वी आर पावरिंग इन जितना वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के लिए
ये वाला पॉइंट अचीव हो जाएगा, ये वाला कंडीशन अचीव होएगा, that volume is known as equivalence point. Am I making sense? The volume of titrant for which above condition is achieved is known as equivalence point. Equivalence point. Is this definition clear? Precisely clear? Hello? Yes, sir. Okay. अथर्व देशपांडे, हाँ सर। आपको क्लियर हुआ ये डेफिनेशन या कुछ इशू है? हाँ सर, समझा। ओके, वेरी गुड. द लास्ट थिंग इन दिस इज एंड पॉइंट. ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन. सी, एंड पॉइंट में ये होता है कि अगर हमारा रिएक्शन जो है वो सेल्फ इंडिकेटिव है ड्यू टू वन रीजन और द अदर रीजन, ठीक है ना, तो द मोमेंट इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी अचीव, the moment equivalence point will be achieved, the system will automatically tell to us that okay, now I am over due to one reason or the other. बात समझ में आ रही है? रिएक्शन जब कंप्लीट होएगा, जैसे इफरवेसेंस आ रहा है, इफरवेसेंस आना बंद हो गया, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन कंप्लीट हो गया, सारे प्रेसिपिटेट जो पड़े हुए थे वो सारे डिसॉल्व हो गए, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया. तो सेल्फ इंडिकेटिंग रिएक्शंस या टाइट्रेशंस में the moment equivalent point is reached, that means all the titrant has been or analyte has been consumed, the reaction ceases to exist. ठीक है, under such circumstances end point is exactly same as equivalence point. यानी एंड पॉइंट होगा, सॉरी इक्विवेलेंस पॉइंट आया और इसके इमीडिएटली बाद फॉलोइंग द एंड सॉरी इक्विवेलेंस पॉइंट विल कम द एंड पॉइंट. ठीक है ना, या इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट साथ साथ आता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Repeat it again. हाँ, आई एम जस्ट सेइंग all those reactions or titrations in which there is self indication. ठीक है, all those reactions in which titrations in which there is a Indication. all those titrations in which there has been there is self indication. ठीक है ना, for all such titrations equivalence point and end point will coincide. ठीक है, इक्विवेलेंस जैसे ही खत्म होंगे, यहाँ पे पड़े हुए टाइट्रैंड के इक्विवेलेंस जैसे ही खत्म होंगे, राइट, इसका इक्विवेलेंस जैसे ही खत्म होएगा यहाँ पे पड़ा हुआ, तो that is the end of the reaction, right? The moment all the equivalents are finished, that is the end of the reaction, and that is when we are going to come to conclude that okay, the reaction has ended. ठीक है, so equivalence का complete होना, completely consume होना and end point coincides self indicators वाले केस में. ठीक है, अब समझो ये होता है बेसिकली एक्सटर्नल इंडिकेटर्स जब हम यूज करते हैं, तो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स का फंडामेंटल क्या होता है कि दे जनरली वर्क ऑन चेंज इन एनवायरनमेंट. ठीक है, जिस सराउंडिंग में वो है, उस सराउंडिंग के नेचर में अगर चेंज हो रहा है, देन वो इंडिकेटर इंडिकेट करेगा बाय चेंजिंग इट्स कलर और समथिंग एल्स. इज इट ओके?
sir. हाँ हेलो. Sir, can you tell the condition where when the end point and equivalence point coincide? एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा है, मतलब नहीं समझा मुझे. Sir, sir, when they are same, can you tell the situation again? एक सेकंड फिर से रिपीट करो, सॉरी. Sir, that self indicator. So that can you repeat that again? हाँ, आई कैन रिपीट इट. सी, सेल्फ इंडिकेटर जब होता है, देखो इक्विवेलेंस पॉइंट जब इक्विवेलेंट्स बराबर हुए तब हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, ठीक है ना. दैट इज समथिंग जो कि हर केस में होएगा, सेल्फ इंडिकेशन हो या ना. ठीक है, अब आते हैं हम लोग एंड पॉइंट पे. तो अगर सेल्फ इंडिकेशन हो रहा है तो जैसे ही मेरे इक्विवेलेंट्स कंप्लीट होंगे उसी समय हमको पता भी चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, राइट. The moment my moles are going to get over, or the analyte titrant is going, yeah, analyte is going to get over, at same moment I'll come to know that okay, it is over now, the reaction is complete now. ठीक है. एग्जांपल्स के लिए मैंने बोला कि प्रेसिपिटेट अगर पूरा खत्म हो रहा है तो जैसे ही पूरा खत्म हुआ हम ऊपर से ड्रॉप्स डाल रहे हैं, मान लो किसी चीज के एजीसीएल को, एजीसीएल प्रेसिपिटेट होता है पानी के अंदर पड़ा हुआ है, और ऊपर से हम लोग मान लो कुछ डाल रहे हैं, लाइक नाइट्रेट वगैरह डाल रहे हैं, किसी का सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट करके NaCl और AgNO3 बनाएगा. तो धीरे धीरे तुम्हारा वो AgCl जो है वो बाहर निकलता जाए, मतलब सॉरी रिएक्ट करता जाएगा धीरे 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 करके. और एक टाइम आएगा जब वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. जैसे ही पूरा खत्म हो, जैसे ऊपर से हम ड्रॉप ड्रॉप डाल रहे हैं, the moment the last drop I put and the last pinch of that AgCl which was put in the solution got dissolved. ठीक है, तो उसी ड्रॉप को हम लोग बोलेंगे ओके, नाउ माय इक्विवेलेंस पॉइंट हैज बीन अचीव्ड. इज इट ओके? दिस वाज अ केस विद सेल्फ इंडिकेटर. जब सेल्फ इंडिकेशन हो रहा है तो the moment my हाँ, so the moment इक्विवेलेंस इक्वल हुए यानी टोटल हमारे एनालिड जो है वो कंज्यूम हो गए. दैट इंडिकेट्स इट्स दैट itself suggests that okay, now my reaction has got completed and that is my end point. So equivalence point and end points comes simultaneously in case of self indicating titration. ठीक है ना. अब होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर्स इफ आई एम यूजिंग. ठीक है, तो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स का काम क्या होता है कि दे वर्क विथ चेंज इन एनवायरनमेंट. जैसे पहले अगर मेरा सिस्टम एसिडिक है और वो एसिडिक से बेसिक में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो जब वो बेसिक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, देन माय इंडिकेटर विल स्टार्ट स्विचिंग इट्स कलर. मेकिंग सेंस? से मेरा सिस्टम पहले एसिडिक है, वो एसिड से बेस बनने जा रहा है, तो बेसिक सॉल्यूशन जब होगा तब क्या होगा, मेरे इंडिकेटर का कलर जो है वो चेंज करेगा. तो अब पॉइंट है, डेफिनेट सी बात ये है कि यहाँ पर एसिड पड़ा हुआ है और ऊपर से हम बेस डाल रहे हैं. ठीक है, ऊपर से धीरे धीरे करके बेस डाल रहे हैं, तो पहले तो ये पूरा कंज्यूम होगा एसिड. एसिड कंज्यूम होने के बाद जब एक दो ड्रॉप एक्स्ट्रा, एक दो
एक्स्ट्रा ड्रॉप्स ऑफ बेस मेरे इस सिस्टम में आएगा तभी ये सॉल्यूशन फिर से बेसिक होएगा, अदरवाइज at equivalence point क्या होगा, it will be a neutral solution. Am I making sense? Am I making sense? ये बात समझ में आई अभी? End point of titration. हेलो सर मैं टाइट्रेशन स्टार्ट होने के पहले ही सर डिस्कनेक्ट हो गया। टाइट्रेशन स्टार्ट होने के पहले ही डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ सर। ओके, तो इक्विवेलेंस पॉइंट भी समझ में नहीं आया तुम्हें? सर मतलब मैं डिस्कनेक्ट कभी काटना है दो। सॉरी सर, नहीं मैं तब था ही नहीं सर, आपने जो भी सिखाया सर। मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट में नहीं थे, हाँ? अभी एंड पॉइंट में भी, मतलब अभी अभी जस्ट आए हो, इज इट दैट? हाँ सर। ओके, सी इक्विवेलेंस सर आई थॉट द स्क्रीन इज गॉट ब्लैकआउट, सो मुझे लगा कि सब कुछ स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया, तो मुझे लगा कि अभी आपने पॉज कर दिया, तो फिर मैं बैठा ही रहा, फिर अभी एकदम से स्क्रीन सर ब्लैकआउट हो गया। ओके चलेगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो इक्विवेलेंस पॉइंट में होता ये है कि टाइट्रेशन में हम ऊपर से धीरे धीरे करके टाइट्रेंट डाल रहे होते हैं, एंड एक टाइम आता है जब टाइट्रेंट के इक्विवेलेंट्स एनालिट के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर एनालिट जो है उसके बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट जो इनकमिंग वाला है उसका, ठीक है। द मोमेंट दिस इज गोइंग टू हैपन, द मोमेंट दिस इज गोइंग टू हैपन, दैट इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेंट बिकम इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ एनालिट, ठीक है। equivalence of titrant becomes equal to equivalence of analyte. सर हाँ बोलो। सर टाइटन हम लोग बाहर से ऐड करते हैं कैसे, अलमारी वगैरह में सब? हाँ देखो, हाँ टाइट्रेंट हेलो बाहर से ऐड करते हैं ब्यूरेट के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड एनालिट जो होता है या टाइट्रैंड, ठीक है, ये यहाँ फ्लास्क वेसल के अंदर हम रखे रहते हैं। इज इट ओके? हाँ सर। एनालिट या टाइट्रेंड का वॉल्यूम नोन होता है, कंसंट्रेशन अननोन होता है। टाइट्रेंड का कितने ड्रॉप्स हमने डाले वो हमारे कंट्रोल में होता है, और कंसंट्रेशन भी इसका नोन होता है। तो बेसिकली वॉल्यूम भी हमको पता रहता है कि कितना डालें, और कंसंट्रेशन भी पता होता है कि किस कंसंट्रेशन का टाइट्रेंट हम डाल रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बेसिस पर, ये इक्विवेलेंस पॉइंट के बेसिस पर जब हमको पता चलता है कि ओके इक्विवेलेंस पॉइंट हैज बीन अचीव्ड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर हो गए, तो वही इक्विवेलेंट पॉइंट होगा। और वो हमको पता कैसे चलता है, तो अगर सेल्फ इंडिकेटर है तो वो खुद से खत्म होगा रिएक्शन, वो हमको पता चल जाएगा प्रेसिपिटेट खत्म होगा, या एफरवेसेंस खत्म हो रहा है, या खुद कलर चेंज हो रहा है, तो वो हमको पता चल जाता है कलर चेंज, या जिस रीजन से जैसे भी हो रहा है। इज इट ओके? अब दूसरी चीज इधर ये होती है, एंड पॉइंट जो होता है वो ये होता है, तो कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें हमको एक्सटर्नल इंडिकेटर डालना होता है। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं, तो एक्सटर्नल इंडिकेटर का प्रोसेस ये होता है कि व्हेन अ सिस्टम चेंजेस, मतलब सॉरी, सराउंडिंग जब चेंज होता है ना, जैसे ये सराउंडिंग या ये सिस्टम जो है इसका नेचर चेंज हुआ, एसिड से बेस अगर ये बनता है, तो बेस जब ये बन जाएगा तो फिर हमारा इंडिकेटर वो बेसिक नेचर को के साथ इंटरेक्ट करके या बेसिक नेचर को रेस्पॉन्ड करके, और फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे जिनको हम विजुअली देखते हैं। जनरली कलर चेंजेस रहते हैं जिनको कि हम विजुअली देखते हैं, ठीक है। तो अब मान लो हमारा ऐसा है कि ये सिस्टम जो है मेरा वो है सिस्टम जो है मेरा वो है ये क्या बोलते हैं, हेलो सर। हाँ बोलो ना, सिस्टम मेरा एसिडिक है, सर बोलो। सर इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब कि
सर मतलब वही होता ना कि मतलब कि जो इक्विवेलेंट जो भी नंबर्स होता है टाइटन और टाइट जो भी रहता है जैसे हाँ वही होता है। तो फिर तो वो जो जब मतलब जब भी वो ऐड होता है वो सेम हो जाता है क्योंकि मतलब वो मतलब एक ही अमाउंट में वो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में रिएक्ट होगा। तो जब वो अचीव करता है उसी को इक्विवेलेंट। हाँ उसी को इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं, इक्विवेलेंस Sir, पॉइंट। हाँ बोलिए। sir, I got disconnected after हाँ you मैं वही पुरानी started चीजें explaining. रिपीट कर रहा हूँ अभी। Sir, can you explain the end point of titration because I didn't hear it because I got disconnected. नहीं नहीं अभी एंड पॉइंट बता ही नहीं रहा हूँ, अभी उसके पहले बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। वेट फॉर हाँ सम sir. मोमेंट, एंड पॉइंट विल कम। So all of you are here. इक्विवेलेंट जब एक बराबर होते हैं दोनों के तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट पॉइंट। एंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो रहा है और उसी समय मुझे पता चल रहा है क्योंकि रिएक्शन हैज गॉट कंप्लीटेड, यानी सेल्फ इंडिकेशन है, तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट दोनों साथ साथ में आएगा। जैसे ही इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे तभी हमको ये भी पता चलेगा क्योंकि रिएक्शन खत्म हो गया, ठीक है। सेल्फ इंडिकेटर का सेल्फ इंडिकेटिंग रिएक्शंस के एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट कोइंसाइड करते हैं। जहां पर भी एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं तो एक्सटर्नल इंडिकेटर हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज को रिस्पॉन्ड करके अपना कलर चेंज करते हैं और उसी को हम एब्जॉर्ब करते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज एसिड बेस। पहले अगर एसिडिक है और हमने रेड लिटमस डाल रखा है तो रेड लिटमस रेड ही दिखेगा, वो ब्लू नहीं होएगा। जब कंडीशन बेसिक में चेंज होएगा, अगर इसमें बेस डाल के न्यूट्रलाइज कर लिया और फिर थोड़ा सा बेस डाल के इसको बेसिक कर लिया, तो फिर उस लिटमस पेपर का कलर जो है वो रेड से ब्लू हो जाएगा। और जब रेड से ब्लू होगा तब हमको पता चलेगा कि अच्छा अब एसिड पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। बट एक्चुअली जब वो ब्लू हुआ, ठीक है ना, तब तक मेरा पूरा एसिड जो था वो पहले ही खत्म हो चुका था, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप पहले खत्म हो चुका था। इट वाज ओनली दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल माय ऑल द एसिड गॉट एग्जॉस्टेड, when I added 1 or 2 or 3 extra drops of base, then only my system became basic, and therefore the indication started, color change started to happen। और वो कलर चेंज जब मैंने देखा तब डिसाइड किया कि ओके नाउ द रिएक्शन इज कंप्लीट और टाइट्रेशन इज कंप्लीट। इज इट ओके? Sir, हाँ बोलिए। सर तो जब ये एसिड को मतलब सर न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं तब जब न्यूट्रल हो गया तो फिर ये जब न्यूट्रल पॉइंट है वही इसका इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन है। हाँ ठीक है। हाँ सर। और उसके बाद आएगा एंड पॉइंट। अगर एक्सटर्नल टाइट्रेशन है तो सॉरी एक्सटर्नल इंडिकेटर है तो सेल्फ इंडिकेशन हो रहा है तो फिर क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट सेम रहेगा। हेलो सर, आपकी स्क्रीन से देखिए इस पे क्या हुआ? हाँ सर मुझे ऊपर का देखना था। क्या देखना है ऊपर का? सर नोट्स नोट नहीं किए हो अभी तक? नहीं सर। सर मुझे अभी सर और थोड़ा नीचे सर नहीं है टाइट्रेशन वाला मुझे था बस इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। मैं लिखता हूं तो तुम लोग क्या करते हो मुझे समझ में नहीं आता है। सर नहीं मैं हर्षित बोल रहा हूँ हाँ सर हर्षित ही बोल रहे हो, बट मैं जब लिख रहा हूँ तो आप लोग क्या कर रहे होते हो? सर नहीं मैं तब था ही नहीं सर, आपने जैसे एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन बताना शुरू किया तभी ना। हाँ सर हो गया।
हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर में देखो, ये जनरल प्रोसेस होता है कि हमारा एंड पॉइंट जो है दैट इज गोइंग टू कम आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी। इंडिकेटर हम क्या यूज कर रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है व्हाट इज आवर एंड पॉइंट इज गोइंग टू बी। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जब मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो उसमें मैं इस चीज के रोल को ज्यादा एक्सप्लिसिटली हाईलाइट करूंगा विथ सम एग्जांपल्स। लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स बताऊंगा और इंडिकेटर्स का लिस्ट बताने के बाद किस रेंज में ऑपरेट करते हैं उसके बेसिस पर मैं समझा दूंगा। इट विल कम टू योर माइंड। देयर कैन बी एक्सटर्नल इंडिकेटर, बेसिकली उन इंडिकेटर्स को वी आर गोइंग टू कॉल रॉन्ग इंडिकेटर्स, ठीक है। राइट इंडिकेटर्स बेसिकली एक्सटर्नल इंडिकेशन इंडिकेटिंग रिएक्टर टाइट्रेशंस के अंदर में वही होता है जिसमें एंड पॉइंट कम्स आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस अगर ये चीज ट्रू है, ये वाली चीज हम फुलफिल हो रही है, दिस मीन्स कि हमारा एक्चुअली सारा रिएक्टेंट या टाइट्रेंट जो है दैट हैज सॉरी एनालिट या टाइट्रेंट जो है दैट हैज गॉट यूज्ड अप, ठीक है। एनालिट या टाइट्रेंट हैज गॉट कंप्लीटली यूज्ड अप। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है तभी, दैट इज एंड पॉइंट इज कमिंग आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्यू पॉइंट के बाद एंड पॉइंट आ रहा है, तभी हमको ये कंफर्म होता है कि ओके द रिएक्शन हैज गॉट एक्चुअली कंप्लीटेड। अगर एंड पॉइंट किसी रीजन से इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले आ गया, दैट मींस अभी भी कुछ हमारा अमाउंट ऑफ टाइट्रेंड या एनालिट जो है वो रिएक्शन वेसल में बचा हुआ है और उसके पहले ही हमारे इंडिकेटर ने एंड पॉइंट फ्लैश आउट कर दिया कि द रिएक्शन हैज एंडेड। that means our that indicator is not right choice of the indicator for the reaction which we are performing. Fine. राइट इंडिकेटर रॉन्ग इंडिकेटर इसके बेसिस पर कॉल लेते हैं। तो जनरल सीक्वेंस क्या है, इक्विवेलेंस के बाद एंड पॉइंट आना है जनरल सीक्वेंस। अगर किसी रीजन से इक्विवेलेंस के पहले एंड पॉइंट आ जाता है, दैट इज अ रॉन्ग चॉइस ऑफ इंडिकेटर। अगर कोई इंडिकेटर इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले एंड पॉइंट बता देता है आपको, दैट मींस योर द चॉइस ऑफ इंडिकेटर व्हिच यू हैव मेड इज रॉन्ग, या फिर इंडिकेटर सही से काम नहीं कर रहा है आपका। इज इट ओके? Now I'd like to discuss types of titration. ठीक है। बेस्ड ऑन एक्चुअली दो कैटेगराइजेशन है टाइप्स डिफाइन करने के। पहला टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट, ठीक है। टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप जो होता है दैट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। दूसरा टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स टाइट्रेशन। तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। एक और छोटी सी चीज होती है, पांचवा टाइप जो होता है दैट इज इलेक्ट्रो
कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, इन सारे टाइट्रेशंस को अकम्प्लिश करने के लिए स्पेशली इन दोनों को, ठीक है, कंडक्टोमेट्रिक वगैरह वाले तो सिंगल स्टेप, ये मतलब नॉर्मल तरीके से ही होते हैं। ये ऊपर के दो जो है ना, दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है, इनके साथ ऐसा है कि दे कैन बी ऑफ और कैन बी accomplished in more than one ways। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। Again, types of titration based on processes followed। There is normal or single indicator titration, there is double indicator titration, third one is back titration, ठीक है। सो ये बाकी जो है ना 3, 4 एंड 5 दे आर गोइंग टू ओनली टेक प्लेस इन नॉर्मल और सिंगल इंडिकेटर टाइट्रेशन। सिंगल स्टेप नॉर्मल टाइट्रेशन होते हैं, ये नॉर्मली ये टेक प्लेस करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड जो है, ये तीनों में से कोई भी चीज एप्लीकेबल हो सकती है इसके अंदर में। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कैन बी नॉर्मल और सिंगल इंडिकेटर टाइट्रेशन, it can be double indicator titration as well, it can be back titration as well, same with redox titration। precipitation complexometric and conductometric जो होते हैं, they are going to take place only and only in normal single indicator process or number single indicator method। Am I making sense? इनमें होता क्या है, सिंगल इंडिकेटर में हम लोग को पता है कि दिख रहा है, बोला हुआ है कि इट्स सिंगल इंडिकेटर, देयर इज ओनली वन इंडिकेटर विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द इंटायर प्रोसेस। दूसरा जो है वो डबल इंडिकेटर वाला जो है, बेसिकली वहां पे दो साइमल्टेनियस रिएक्शंस चल रहे होते हैं या दो रिएक्शंस चल रहे होते हैं, एक का कंप्लीशन पहले होता है, दूसरे का कंप्लीशन बाद में होता है। Therefore, we require two different indicators to indicate the completion of these two component reactions. Am I making sense? Double indicator. Then the last one is back titration। Back titration में ये होता है कि सपोज हमने किसी चीज का एक अमाउंट लिया, ठीक है, और जैसे NaOH लिया मैंने 1 मोल। अब पहले से मुझे पता नहीं है कि NaOH कितना है, ठीक है, सो मैंने बस यहाँ NaOH लिया। अब मैं HCl कहीं से लेकर के आ रहा हूँ और HCl जो लेकर के आ रहा हूँ वो मुझे पता है कि कितना है, ठीक है। अब NaOH का अमाउंट अगर मैंने इतना देखा तो मैंने अंदाजा लगाया कि ये कितना होना चाहिए। सपोज मेरे दिमाग में है कि अच्छा दिस इज 2 मोल्स NaOH हो सकता है ये,
तो HCl मैं 3 मोल्स लेकर के आऊंगा, ठीक है। आई डोंट नो NaOH एग्जैक्टली कितना है, बट मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 3 मोल्स लेकर के आऊंगा। अप्रोक्सीमेटली मतलब इसका जितना भी वेट या अमाउंट होगा वो हमको प्रिसाइजली पता रहेगा। तो मैं मेजर करके 3 मोल्स लेकर के आता हूँ। अब HCl के साथ इसको सॉरी NaOH के साथ HCl को रिएक्ट कराने लगता हूँ, ठीक है। तो अ टाइम विल कम व्हेन entire NaOH will get consumed, ठीक है। एंड उस मोमेंट पर HCl डालना हमने बंद कर दिया। अब देखा कि यहाँ पे HCl कितना बचा हुआ है, तो सपोज यहाँ पर जो है HCl वो 1 मोल बचा हुआ है, ठीक है। ऐसा हमको पता चलता है एनालिसिस के बाद। 1 मोल ऑफ HCl इज स्टिल रिमेनिंग। अब ये डायरेक्टली हमको पता नहीं चलेगा, हम लोग को अभी के लिए सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे कुछ HCl जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। अब ये बचे हुए का अमाउंट कैसे पता करेंगे, इसको वापस से किसी दूसरे बेस के साथ टाइट्रेशन कराएंगे और उस बेस का अमाउंट पता रहेगा हमको, ठीक है। तो HCl को मान लो मैं सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, इसका नोन अमाउंट रहेगा हमारे पास, और उससे धीरे धीरे इसको रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट करा के जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा, न्यूट्रलाइजेशन या इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, उसको नोट कर लेंगे और उसके बेसिस तो पर फिर सर तीनों का इक्विवेलेंस पॉइंट सेम है? नहीं, तीनों का इक्विवेलेंस पॉइंट सेम कैसे होगा? पहले किसी का आ रहा है, बाद में किसी का आ रहा है, तो तीनों का सेम कैसे हो जाएगा? ये इसको पहले इसमें डाल रहे थे, जो बचा रहा फ्लास्क में उसको कहीं और डाल के रिएक्शन करा रहे हैं, तो तीनों का सेम कैसे हो जाएगा? ये एक वेसल में पड़ा हुआ है, यहां से हम लोग डाल रहे हैं HCl को। इतना HCl डालने के बाद ये खत्म हो गया, अभी भी मेरे पास इतना HCl बचा हुआ है। तो अब ये कितना HCl बचा हुआ है ये पता करने के लिए मैं दूसरा रिएक्शन कराने गया। दूसरा रिएक्शन क्या है, तो इसको मैंने ले लिया, जितना भी बचा हुआ था उसको हमने ले लिया, उसका वॉल्यूम मेजर कर लिया और उसको ले लिया फ्लास्क के अंदर, ठीक है। क्वांटिटी इसकी अननोन है और ऊपर से मैं नोन क्वांटिटी नोन ये का CSOH डालना चालू किया। इज इट ओके? तो अ पॉइंट विल कम, जब मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी रीच्ड CSOH का, उस पॉइंट पे उस पॉइंट को नोट कर लेंगे कितना वॉल्यूम डाला, इसका कंसंट्रेशन पता रहेगा। तो लेट कंसंट्रेशन बी M1 एंड वॉल्यूम व्हिच हैज बीन यूज्ड इज V1। तो CSOH का मोल्स कितना हुआ, M1 V1। तो यहाँ पे जो हमारा HCl है इसका मोल्स कितना रहेगा, M1 V1 के बराबर मोल्स रहेगा, तभी 1:1 रिएक्शन करेगा, ठीक है। सर नॉट अंडरस्टूड। क्या नॉट अंडरस्टूड इसमें? सर आपने पहले तो CSOH डाला, उसमें वो जो भी नोड है उसका हाँ, वॉल्यूम हमें पता है, नहीं, तुम्हारी बात कंसंट्रेशन मुझे नहीं मेंबर। सुनाई दे रही। हेलो, Yes, sir. ऑडिबल? यस सर। गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो अभी बैक टाइट्रेशन क्या होता है थोड़ा सा समझ में आ गया है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फाइन। तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट यही होता है कि मिडिल वाला जो लेते हैं हम, पहला जो ये लेते हैं टाइट्रेंट लेते हैं या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, उसका हमको टोटल मोल्स या टोटल वॉल्यूम एंड कंसेंट्रेशन पता होता है, ठीक है। इसमें से कितना यहाँ पर आया, फर्स्ट वाले के साथ रिएक्ट किया, वो हम लोगों को अमाउंट सिर्फ नोन रहता है, मे बी कंसेंट्रेशन हमको अननोन रहता है। अब ये जो बचा हुआ अमाउंट होता है इसको हम रिएक्ट कराते हैं किसी दूसरे ये टाइट्रेंट के साथ,
एंड फिर इसका बचे हुए का अमाउंट पता करते हैं, टोटल में से बचे हुए का हटा दिया तो ये कितना कंज्यूम हुआ पहले वाले टाइट्रेशन में वो हमको पता चलता है, और उसके बेसिस पर इसका हम लोग कंसेंट्रेशन या अमाउंट पता कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज वेयर थिंग्स एंड this is the reason, I mean, it is basically a back calculation through which, or a backward process of calculation through which we are getting the final amount या final concentration of the first reactant, ठीक है। therefore it is known as back titration, ठीक है। डबल इंडिकेटर में दो अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करते हैं हम लोग, सो दैट दो अलग अलग इक्विवेलेंट पॉइंट मिले, और ऑब्वियसली उसके हिसाब से उस कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स में, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ या मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स में कौन सी चीज कितनी थी, कौन सी दूसरी वाली चीज कितनी थी, इसका हमको एग्जैक्ट आइडिया रहे। दैट इज वेयर डबल इंडिकेटर्स कम्स इनटू पिक्चर। देन यू हैव नॉर्मल और सिंगल इंडिकेटर, दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। नाउ आई विल एक्चुअली गिव सम राइट अप अबाउट दिस नॉर्मल इंडिकेटर एंड डबल इंडिकेटर। और नॉर्मल इंडिकेटर के रिगार्डिंग, सॉरी, डबल इंडिकेटर, नॉर्मल इंडिकेटर में मैं बताऊंगा। You will get to write a list of things, so just wait.
Sir, can you scroll a little bit up? Wait. हाँ, नोट कर लीजिए जल्दी से। सर आपने ये सिर्फ कौन है? ये सर ये क्या किया है? क्या किया है? सर ये PH 7.5 और उसके बाजू में सर ये क्या किया है सर? वो मतलब अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बोला कि ये जो है ना शुरू में बेसिक रहेगा, एक HCl से रिएक्ट करेगा तो बेसिक से बहुत कम बेसिक, माइल्ड बेसिक, ठीक है, में कन्वर्ट हो जाएगा या ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएगा और एक और HCl के साथ रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो फिर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा मेरा, दैट विल बिकम एसिडिक। यस सर। ठीक है, बस यही बोल रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था, मतलब बोलो इसका ना। नहीं सर, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड या फिर सब्सटेंस क्या है? क्या बोल रहे हो, नहीं समझा मुझे। सर मोस्ट एसिडिक कंपाउंड या फिर सब्सटेंस। मोस्ट एसिडिक कौन सा है? जनरली परक्लोरिक एसिड जो होता है ना वो मोस्ट एसिडिक होता है, HClO4, ठीक है, इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल एसिड, ठीक है। वी हैव अदर एसिड्स आल्सो जो कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट दे आर नॉट सिंगल एसिड, दे आर मिक्सचर ऑफ सम एसिड्स, one or two acids being mixed together to make that particular combination. ऐसे aqua regia सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट हाँ वो सर, वो मिक्सचर गोल्ड को होता है। डिसॉल्व हाँ, वो मिक्सचर होता है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक। नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक, HCl एंड हाँ नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, 3:1 के रेशियो में मिक्स करते हैं, इट फॉर्म्स aqua regia। तो बट दैट इज मिक्सचर ऑफ एसिड, सिंगल एसिड में दिस इज समथिंग व्हिच इज, I mean we can say it's most strong acid। और कोई डाउट इसके रिगार्डिंग Na2CO3 के रिगार्डिंग? सो Na2CO3 में क्या हुआ है, Na2CO3 इज गोइंग टू शो टू स्टेप रिएक्शन, ठीक है। दो स्टेप रिएक्शन में पहला चेंज जो होगा दैट विल बी इंडिकेटेड बाय Na2CO3 plus HCl forms NaCl and NaHCO3, ठीक है। इसका इंडिकेटर कौन सा रहेगा, फेनोप्थिलीन, फेनॉल, फेनॉल, फेनोल। और सेकंड वाला यहाँ पर नेचर क्या रहेगा, जब इस तरफ आ जाएगा तो इट विल बी माइल्डली, माइल्डली बेसिक, ठीक है। इधर रहेगा तो इट विल बी, आई मीन, मोर बेसिक। स्ट्रांगली नहीं है अब ये, बट मोर बेसिक डेफिनेटली है, मोर बेसिक। अब यहां से फिर से दूसरा स्टेप जब रिएक्शन होता है HCl के साथ, सेकेंड स्टेप रिएक्शन, NaHCO3 plus HCl will give us one more mole of NaCl plus it will give H2CO3. Now it will become mildly basic, acidic, mildly acidic, और इधर क्या था, mildly basic था, mildly basic, ठीक है। एक्चुअली माइल्डली नहीं, थोड़ा ज्यादा बेसिक एसिडिक रहेगा, it will become acidic, we can say acidic, ठीक है। इस चेंज के लिए फेनोप्थिलीन वाज अ गुड इंडिकेटर,
इस चेंज के लिए माइल्डली बेसिक से अगर एसिडिक कोई चीज चेंज होकर के जा रहा है तो व्हाट कुड बी अ गुड इंडिकेटर? कैन वी गो टू द इंडिकेटर लिस्ट एंड फाइंड आउट? सर phenol red. Yes, either phenol red or नहीं, why phenol red? एक सेकंड, phenol red क्यों? सर ब्रोमो थाइमोल Sorry sir. Sir litmus. Litmus sir. पहले बेसिक मतलब 7.6 एसिडिक जा रहा तो फिर ब्रोमोथाइमोल ब्लू भी हो सकता ना। ब्रोमोथाइमोल ब्लू भी हो सकता है, ठीक है, और बताइए। Litmus. और मान लो मेरा फाइनल पीएच जो है वो 3 या 4 के रेंज में पहुंच रहा हो, तब क्या करेंगे? ये सब तो Sir डिस्कलर फिर हो वो जाएंगे। क्रेसॉल हो थाइमोल जाएंगे। ब्लू फर्स्ट चेंज. थाइमोल ब्लू फर्स्ट चेंज या फिर मिथाइल ऑरेंज। जनरली हम लोग मिथाइल ऑरेंज के साथ करते हैं, ठीक है, या तो मिथाइल ऑरेंज नहीं तो मिथाइल रेड लेते हैं, आइदर ऑफ द टू। इज इट ओके? So the second equivalent point will either be indicated by methyl orange, methyl red or methyl orange, या फिर उस रेंज के कोई भी, बाकी भी जो है उसको भी करेंगे, दैट इज नॉट आउटकास्ट। ब्रोमोक्रेसॉल ग्रीन भी कर सकता है, देयर इज नो इशू। सो एनी ऑफ दीज थ्री कैन डू दैट वर्क। जनरली ऑरेंज या रेड लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज या रेड इज मोर कॉमन कंपेयर टू ब्रोमोक्रेसॉल ग्रीन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस। वेरी गुड। अब मैं दूसरा सिनारियो ले रहा हूं। सपोज मैंने कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4 ही ले लेता हूं यार। CuSO4 को मैं टाइट्रेट कर रहा हूं मान लो NaOH के साथ। तो पहले क्या होगा? द फर्स्ट थिंग विच विल हैपन इज माइल्डली एसिडिक, आ एसिडिक से माइल्डली एसिडिक का जाएगा। इट विल बिकम CuHSO4 बाइसल्फेट बनाएगा। सर ये बोलिए। बेसिक जाएगा ना सर ये? से हाँ, माइल्डली एसिडिक क्या है? दिस इज इनिशियली एसिडिक, गुड एसिडिक, उससे थोड़ा सा कम एसिडिक यहाँ पर बनेगा, दिस विल बिकम माइल्डली एसिडिक, माइल्डली एसिडिक, ठीक है ना? नहीं सर ये एक सेकेंड, हाँ बोलो। सर ये लिटमस यूज करेंगे। ग्रीन और मिथाइल रेड हो सकता है दोनों। हाँ, इंडिकेटर पर मैं आ रहा हूँ, पहले मुझे रिएक्शन लिख लेने दो, और फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा? CuHSO4 is going to further react with NaOH to form CuOH whole twice plus Na2SO4, Na2SO4, CuHSO4, COH, दो, minus दिस इज द रिएक्शन, एंड यहाँ पर ये रिएक्शन होगा, और यहाँ पे फिर से ये माइल्डली एसिडिक से, माइल्डली एसिडिक से ये बेसिक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बेसिक, ठीक है।
अब इस स्टेप के लिए अगर इस तरह का कोई रिएक्शन आया और जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, यानी एसिडिक सॉल्ट है, तो उसके फर्स्ट टाइट्रेशन के लिए या फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए विच कुड बी द बेस्ट इंडिकेटर फॉर अस? लिटमस। एसिडिक से माइल्डली एसिडिक सर मिथाइल रेड। मिथाइल रेड इज द बेस्ट वन. दिस इज पॉसिबली गोइंग टू पिक इट अप. या ब्रोमोक्रेसॉल भी, इधर से हम इस तरफ आ रहे हैं तो मिथाइल रेड या ब्रोमोक्रेसॉल आर द गुड थिंग्स जो कि डेफिनेटली उस चेंज को कैच कर लेंगे. ठीक है, इज इट ओके? हेलो हेलो, ठीक है. सो मिथाइल रेड जनरली कॉमन वन इज मिथाइल रेड. सो यहाँ पर मेरा इंडिकेटर क्या होगा? माय इंडिकेटर इज गोइंग टू बी मिथाइल रेड. मिथाइल रेड. सब ब्रोमोक्रेसॉल है। ब्रोमोक्रेसॉल भी हो सकता है. मिथाइल रेड इज मोर प्रेफर्ड. ठीक है, ब्रोमोक्रेसॉल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स इक्वली गुड. बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड. इज इट ओके? सेकेंड वाले के लिए कौन सा होगा? सर लिटमस या ब्रोमोथाइमोल। लिटमस और ब्रोमोथाइमोल। लिटमस या फिर ब्रोमोथाइमोल ब्लू. ब्रोमोथाइमोल ब्लू। हाँ, या फिर फेनॉल रेड भी हो सकता है. ठीक है, सर फिनॉल रेड फिनॉल रेड मतलब पे मैं अगर सर बोलो. वो जो है वो माइल्डली एसिडिक से बेसिक जा रहा है, तो अब फिर वो माइल्डली एसिडिक बेसिक कैसे जा रहा है करेगा? तो बेसिक में चला जा रहा है ना, वो माइल्डली बेसिक में है ऐसा नहीं है. इट इज गोइंग टू बेसिक. माइल्डली बेसिक इज 7.58 का रेंज. उससे ज्यादा अगर हो रहा है उसका पीएच तो इट इज बिकमिंग बेसिक. दैट इज व्हाई phenol rate can also be a good indicator. In fact, that will be a more appropriate indicator. बात समझ में आ रही है? 7 पे न्यूट्रल, लेकिन 6 पॉइंट ऑफ सर न्यूट्रल. लिटमस ज्यादा होगा, अच्छा होगा ना, क्योंकि नहीं, इट कैन लिटमस रेंज ज्यादा टू तो अच्छा होगा. 5.5. लिटमस तो अभी थोड़ा सा चेंज होना चालू होएगा ना. हाँ सर, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज रेंज सर, वो थोड़ा धीरे धीरे चेंज होगा. हाँ, फेनॉल रेड कुड बी अ गुड इंडिकेटर. वैसे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, डिसएग्री कर रहा हूँ कि लिटमस नहीं होगा अच्छा इंडिकेटर. लिटमस भी काम करेगा. फेनॉल रेड इज इट्स गोइंग टू बी अ गुड इंडिकेटर फॉर अस. ठीक है, फेनोप्थिलीन वगैरह नहीं यूज कर सकते, वो और ज्यादा बेस लेगा, उसके बाद फेनोप्थिलीन रेंज में पहुंचेगा. तो मतलब एंड पॉइंट विल बिकम फार्दर फ्रॉम इक्विवेलेंट पॉइंट. तो यहाँ के लिए फेनॉल रेड कुड बी अ गुड इंडिकेटर फॉर अस. ठीक है, फिनॉल। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आइडिया आप लोग को आ गया. जनरली क्वेश्चंस जो रहेंगे आपको मिलेंगे ना इसमें डबल इंडिकेटर वाले में, वो इसके रहते हैं, इसी के कॉम्बिनेशंस रहते हैं. ठीक है, बट किसी का भी आए, with the help of that acid chart you can be able to tackle it. Making sense? सर मतलब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? मतलब इसमें ऐसे ही ना सर कि कौन से टाइप का इंडिकेटर, मतलब कौन सा इंडिकेटर चाहिए इसको? नहीं, ये तो बहुत छोटा वाला क्वेश्चन हो गया कि कौन सा इंडिकेटर चाहिए. इसमें क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है आपको. मैं जैसे एक कराता हूँ क्वेश्चन, डोंट वरी, सबके क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है. ठीक है, आई डू इट. दो हो गया, और तीसरा जो था वो था बैक टाइट्रेशन था. ठीक है, लेट मी डू द बैक टाइट्रेशन. बैक टाइट्रेशन वाला तो बता ही दिया था मैंने. और नाउ इट्स टाइम फॉर हाँ अस सर। डील विद सम क्वेश्चन. ठीक है, सर इसके बाद मतलब ये सिर्फ एसिड बेस का था ना, इसके बाद वो रेडॉक्स का और बाकी के 3 का अलग रहेगा ना? नहीं नहीं, रेडॉक्स वगैरह का तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. रेडॉक्स तो पूरा पढ़ चुके हो तुम लोग. वो आखिरी में जो हाँ रिएक्शन सर, बताए थे ना, रेडॉक्स आखिरी में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट लिखवाया था. ठीक है, हाँ सर। अब वही है. हाँ सर, आपने बताया था. हाँ,
तो अब उसमें सेम यही चीजें इसमें अब सिंगल इंडिकेटर जैसी चीज नहीं होती है, सिर्फ बैक टाइट्रेशन उसमें चलता है। रेडॉक्स टाइट्रेशन में सिंगल एक्सटर्नल इंडिकेटर बहुत ही कम यूज होता है, नंबर 1 मैंने लिखा रखा है और ये रियलिटी है। तो एक्सटर्नल इंडिकेटर रेडॉक्स में अगर कम यूज हो रहा है तो फिर देयर कैन नॉट बी मल्टी स्टेज इंडिकेशन, या मल्टी स्टेज इंडिकेशन होता भी है ना, तो इसी में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे mn है, mn +5 +7 पर है, +7 से +4 पर आया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मान लो पिंक है या मैग्नेटा है, यहाँ से ये पिंक पर आया और पिंक से फिर ये mn2+ पर आया, जिसमें ये हो जा रहा है ब्राउन या समथिंग, कोई भी एक कलर, कलर ए, कलर बी, कलर सी। तो ये ट्रांजिशन को हम लोग एक इंडिकेटर से इंडिकेट कर लेंगे या एक कलर चेंज से इंडिकेट हो जाएगा, फिर यहां से यहां आना दूसरे कलर चेंज को इंडिकेट करेगा। बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पे भी डबल इंडिकेटर, सिंगल इंडिकेटर, तो बट इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अलग से नहीं आते हैं, इनका सेल्फ का इंडिकेशन ही होता है। वो 2 स्टेप इंडिकेशन करेंगे, कभी कभी 3 स्टेप कर सकते हैं, कभी सिंगल स्टेप इंडिकेशन करेंगे। इंटरमीडिएट वाला नहीं आएगा, डायरेक्टली लास्ट वाला स्टेप आएगा। हाँ सर, सेल्फ इंडिकेशन है तो फिर इसका स्टार्ट पॉइंट और वो एंड पॉइंट सर सेम होगा ना सर? नहीं, फिर से बोलो, सॉरी। सर इसका ये सेम है ना, क्या बोलते हैं सर, ये सेल्फ इंडिकेटर है तो फिर इसका सर ये सेम रहेगा ना एंड पॉइंट और? सेल्फ इंडिकेटर है तो वो कहाँ पे रुक रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि Mn4+ जो है ये न्यूट्रल में आता है, राइट। ये कब आता है? एसिडिक मीडियम रहेगा तो, और बेसिक में +6 पे रहता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब सिस्टम मेरा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसा है, ठीक है, या किस, अब वही है कि अगर मैं कंडीशन, रिएक्शन कंडीशंस को चेंज कर रहा हूँ तो आई कैन हैव डिफरेंट स्टेट्स, और उसके हिसाब से मुझे लाइक डबल इंडिकेटर रिएक्शन बोल लूँ 2 स्टेप हो रहा है तो, 3 स्टेप बोल रहा है तो ट्रिपल इंडिकेटर रिएक्शन बोल लूँ, या सिंगल स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो आई मे कॉल इट सिंगल स्टेप या सिंगल इंडिकेटर सिस्टम। मतलब अगर मेरा कंडीशन स्ट्रांगली एसिडिक है और Mn7+ को लेता हूं तो डायरेक्टली बिना इंटरमीडिएट स्टेप पर आए हुए ये डायरेक्टली Mn2+ पे चला जाएगा। इज इट ओके? यस सर। बात समझ में आई? सो अब हाँ, इसमें अब रेडॉक्स टाइट्रेशन में बोलोगे कि सर ये एसिड बेस वाला, नहीं, ऐसा कोई चार्ट नहीं है, ठीक है। जैसा यहाँ पे हमने एक टेबल प्रिपेयर कर रखा है, ऐसा कोई प्रिपेयर्ड टेबल नहीं उसमें होता है, उसमें हमको स्टेट्स के हिसाब से ही जाना होता है। जैसे Mn के केस में मैंने बताया, वैसे ही बाकियों के केस में भी रहेगा। देयर कैन बी मल्टी स्टेजेस एंड डबल इंडिकेशन इज नथिंग बट मल्टी स्टेज प्रोसेस। कहीं पर भी अगर मल्टी स्टेज प्रोसेस हो रहा है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डबल इंडिकेटर, ठीक है, या मल्टी स्टेप इंडिकेटर इंडिकेशन। सर हाँ बोलिए। सर हम लोग अगर डाइक्रोमेट आयन का एग्जांपल ले तो? देखो, डाइक्रोमेट आयन में एक ही स्टेट मिलता है हमको, ठीक है, +6 एंड +3, और कोई स्टेट है नहीं। तो जिसमें मल्टीपल स्टेट्स रहेंगे उनमें ही वो एग्जांपल रहेगा ना, हो सकता है ना। जैसे आयरन वगैरह में अगेन फिर भी पॉसिबल है, आयरन में प्लस, या क्रोमियम में भी आप ओके 3 स्टेट्स अगर बोलोगे तो ठीक है, Cr में +6 स्टेट एक हो सकता है, Cr का +3 स्टेट एक हो सकता है, और Cr 0 भी हो सकता है, राइट। यस सर। हाँ सर। तो अब ये तीनों के बीच में जो कलर चेंज रहेगा, अब ये अगर यहाँ से डायरेक्टली जंप कर गया यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी सिंगल इंडिकेटर या नॉर्मल टाइट्रेशन। यहाँ से यहाँ और यहाँ से आया तो इट्स अ 2 स्टेप एंड देयरफॉर इट इज डबल इंडिकेशन टाइट्रेशन, नॉट डबल इंडिकेटर बट डबल इंडिकेशन टाइट्रेशन, ठीक है। बैक टाइट्रेशन कब होगा?
जैसे वहां पर एसिड या बेस एक्सेस लिया था मैंने थर्ड कोई सोचा एक्स्ट्रा हाँ, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट जो रहेगा वो एक्स्ट्रा लूंगा, पहले वाले के साथ रिएक्ट करा लूंगा, उसमें कुछ अमाउंट बचा रहेगा उसको किसी और के साथ रिएक्ट कराऊंगा, फिर कितना बचा हुआ था पहले वाले रिएक्शन के बाद वो मुझे पता चलेगा, टोटल मुझे पता रहेगा, उसमें से इसको घटा दूंगा, जितना सेकेंड वाले रिएक्शन में यूज हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, पहले वाले रिएक्शन में कितना यूज हुआ ये पता चल जाएगा, और उसके बेसिस पर अननोन जो अमाउंट था रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था, जो एग्जैक्टली शुरू में लिया था हमने, उसका अमाउंट पता चल जाएगा। सो द कॉन्सेप्ट रन्स इन अ सिमिलर मैनर, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल्सो रन्स इन सिमिलर मैनर, मेकिंग सेंस? यस सर। बात समझ में आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस नो। ओके, दो चीजें और मैं बता दूंगा, ये कंडक्टोमेट्रिक जो है ना वो अभी के लिए है नहीं, इसको हम लोग इसमें डील करेंगे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब कर रहे होंगे चैप्टर ना, वहां पे कंडक्टोमेट्रिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक्चुअली कंडक्टिंग सेल होता है और उसके रेसिस्टेंस के बेसिस पर इस टाइट्रेशन को डिस्कस किया जाता है, बात समझ रहे हो? यस सर। तो इसको अभी समझा के कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है, इन दोनों के बारे में आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि होता क्या है, और ये बिल्कुल ही टोलून क्या डिफिकल्ट रहता टाइप है? नहीं है। क्या हुआ, सॉरी? सर टोलून क्या रहता है? नहीं समझा, मुझे फिर से बोलो। सर एक एसिड TOULOUNE सर एक टोल्यून सर वो होता क्या है, मतलब टोल्यून होता है, वो एसिड नहीं होता है, दैट इज बेंजीन। इसका एक हाइड्रोजन CH3 से जब रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टोल्यून। तो सर ये फिर क्या रहता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ENE होता है टोल्यून, ठीक है। तो दिस इज नॉट एसिड, नॉट एट ऑल एन एसिड, these are organic compounds. Let us talk me something about precipitation reaction. देखिए प्रेसिपिटेशन या फिर ये दूसरा वाला जो टाइप है ना, प्रेसिपिटेशन की बात करें या फिर हमारा ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, ठीक है, दोनों का एग्जांपल्स ले लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को। एसिड बेस, second one is redox, third one is precipitation titration। देखो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में होता क्या है, जैसे हम लोग NaCl लेते हैं और इसमें Ag2CO3 को डालते हैं, ठीक है, तो AgCl के साथ रिएक्ट करके NaCO3 के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, और AgCl के साथ रिएक्ट करके AgCl बना लेता है, ठीक है, एंड दिस फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, मेकिंग सेंस? अब हम लोग जितना या तो NaCl को हम लोग ऊपर से डाल रहे हैं या फिर Ag2CO3 को ऊपर से डाल रहे हैं, ठीक है, जनरली Ag2CO3 विल बी टेकन इन द फ्लास्क और ऊपर से हम लोग NaCl को डालेंगे, और ऑब्वियसली एक सॉल्यूशन रहेगा NaCl का और उससे ड्रॉप 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 करके डालेंगे। सपोज 50 ml हमने NaCl डाला, 50 ml NaCl डालने के बाद और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो था वो 0.1 मोलर था। व्हाट हैपेंस इज 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन डालने के बाद जितना भी AgCl था ना वो पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट कर गया, ठीक है, ये हमको पता चल गया और हमने नोट किया, और उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि उसके बाद अगर NaCl और डाल रहे हैं हम, तो देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द लंप ऑफ AgCl। This is going to indicate me that okay, my reaction is complete, and it is this point that the reaction has
गॉट कंप्लीटेड। ठीक है, सो बेसिकली NaCl जो हमने डाला उसका अमाउंट कितना है 0.1 इंटू 50 दैट इज 0.005 005 005 ना, इसका हाँ सब वही बोला 0.05 0.005 हाँ इतना मोल्स है। Ag2CO3 के साथ ये रिएक्ट करके AgCl बना रहा है, तो इसका जितना मोल्स रहेगा और AgCl का जितना मोल रहेगा दैट विल बी सेम। यस एम आई मेकिंग सेंस? 2 मोल इज इक्वल टू 2 मोल, जितना मोल इसका उतना मोल इसका। तो हमको इससे पता चल गया कि AgCl कितना फॉर्म हुआ 0.005 मोल्स। इज इट ओके? या फिर इसका वेट हम, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो गया है तो प्रेसिपिटेट का को फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करने के बाद ड्राई करके इसका वेट निकाल लेंगे, वेट निकाल के मोल्स का पता करेंगे, उससे NaCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा हमको क्या यूज किए थे। या फिर उससे Ag2CO3 का कंसंट्रेशन या उसके अंदर Ag2CO3 कितना था, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? सर और एक एग्जांपल सर दूं सर आपको, मतलब मुझे आप देने उसमें वाले जैसे हो अभी मुझे? एक थोड़ा सा हाँ क्या सर, क्या? मतलब कि मुझे उसमें से मतलब अगर अरे उसका मतलब तुम एग्जांपल लेके एग्जाम्पल सर देना चाहते हो तो दे करेंगे दो सॉल्व तो भाई, कैसे इट्स नॉट करेंगे प्रॉब्लम। मैं जस्ट मुझे ऐसा। लगा मैंने कहीं सुनने में गलती तो नहीं की, इतना डर क्यों रहे हो? तुम एग्जाम्पल ही देना चाहते हो ना, एग्जाम्पल या तो सही होगा या फिर गलत होगा। गिव इट, डोंट वरी। सर NaCl plus 2 NaCl plus BaSO4 gives एक सेकेंड रुक जाओ BA एक सेकेंड। NaCl प्लस BaSO4 BaSO4 नहीं, ये नहीं होगा, ये एक्चुअली नहीं होगा। इसका उल्टा रिएक्शन अगर लेते हो ना तो हो जाएगा। यानी BaCl2 एक्चुअली BaSO4 जो है ना वो खुद ही प्रेसिपिटेट है। हाँ सब वो रिएक्शन के बाद बन रहा है नहीं, ये NaCl4 और प्रेसिपिटेट होता है, ये BaCl2 के पानी में बाद। सॉल्युबल नहीं होता है। बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट या बैरियम कार्बोनेट जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और जो चीजें इनसॉल्युबल होती है वाटर में वही तो प्रेसिपिटेट होती है ना। हाँ हाँ सर। सही BaSO4 सर खुद फिर उल्टा NaSO4 रिएक्शन जैसे और कि हाँ वही BaCl2 के साथ बन रहा है। Na2SO4 plus BaCl2 हाँ gives BaCl2 2NaCl ले plus लिया BaSO4. मैंने aqueous और इसमें मैंने Na2SO4 डाल दिया। परफेक्ट, नो इश्यूज। तो इट विल फॉर्म BaSO4 प्लस NaCl। हाँ ठीक सर, है, गलती से उल्टा रिएक्शन। क्लियर है ना? हाँ सर, तो इसके बेसिस पे सर कैसे हाँ तो करेंगे? देखो अब BaSO4 जितना फॉर्म हुआ, ठीक है ना, उससे हमको कितना मोल्स BaSO4 फॉर्म हुआ ये पता चल जाएगा। अगर मोल्स के टर्म में देखना है तो फिर बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए होगा मुझे। मान लो ये कुल मिलाकर के 0.1 मोल फॉर्म हुआ, तो इसका कितना मोल चाहिए होगा हमको रिएक्शन में? कम से कम 0.1 मोल। 0.1 मोल ही चाहिए होगा, रिएक्ट किया। और इसका भी 0.1 मोल चाहिए होगा। 0.1 मोल। ठीक है ना? अब बात ये है कि ऐसा भी हो सकता है कोई चीज एक फ्लास्क में रखा हुआ हो और कम अमाउंट वाला, जैसे BaCl2 वाज लिमिटिंग एंड वही 0.1 ml था, इसी की वजह से इसका 0.1 ml का फॉर्मेशन हुआ। ये मान लो हो सकता है कि ये एक्सेस में हो, तो Na2SO4 सॉल्यूशन जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है विच इज इन एक्सेस, एंड इसके ऊपर BaCl2 जो है वो ड्रॉप करके डाल रहे हैं हम लोग। तो ये जब कंज्यूम हो गया तो सारा का सारा, तो इस तरीके से ही कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, should I हाँ सर। explain it again? सर एक बार और। No sir, Okay. See, I'm just saying that सोडियम सल्फेट जो है यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन में रखा हुआ है और BaCl2 को ऊपर से डाल रहे हैं। अब BaCl2 will react with sodium sulfate to form BaSO4,
अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। पहला ये कि ऊपर से जो BaCl2 डाल रहे हैं इसका अमाउंट कम हो, मान लो यही 0.1 मोल हो, हाँ, जिसकी वजह से ये पूरा कंज्यूम हो गया एंड BaSO4 0.1 मोल बना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर अभी भी Na2SO4 थोड़ा सा बचा रहेगा ना, बात हाँ समझ। सर। या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि NaSO4 जो है, Na2SO4 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट था और वो कंप्लीटली यूज हो गया। BaCl2 अभी भी थोड़ा बचा हुआ है जो बीकर से हम डाल रहे हैं, बट there is no Na2SO4, so no further precipitate of BaSO4 can be formed, right? तो पॉइंट अब ये है कि किसका हमने कितना अमाउंट लिया था, ये अगर या तो पता रहे हमको या फिर हम लिमिटिंग वाले को डेफिनेटली ढूंढ लेंगे। अगर BaSO4 0.1 मोलर 0.1 मोल्स बनता है, दैट मींस NaSO4 0.1 मोल कंज्यूम हुआ और BaCl2 भी 0.1 मोल कंज्यूम हुआ, दैट्स इट। हाँ सर, लेकिन उससे पहले बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ना। हाँ, या फिर दूसरा ये कर सकते हैं हम लोग कि इसका 1 इक्विवेलेंट अगर या 0.2 इक्विवेलेंट मान लो फॉर्म होता है तो सबके 0.2 इक्विवेलेंट्स ही होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ बैलेंस किए हैं या नहीं किए हैं। 0.2 इक्विवेलेंट, इसका भी 0.2 इक्विवेलेंट ही फॉर्म होएगा। इट इज नॉट लाइक यहाँ पर सर NaCl का है ना, सिर्फ हाँ, NaCl का पॉइंट। NaCl तो और क्या है यहाँ पर 2NaCl का, 2NaCl कोई चीज थोड़ी होती है, इट इज जस्ट NaCl, उसका भी 0.2 इक्विवेलेंट फॉर्म होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ट्वाइस है तो फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 0.4 हो जाएगा इसका, इट विल बी 0.2 इक्विवेलेंट ओनली। क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर है हम लोगों को? Yes, sir. सर आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक बार मतलब लिखा के दे सकते हैं क्या? क्या और करना सर है? एक बार से रिटर्न। रिटेन मतलब उसमें चाहिए क्या यार? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना है उसमें और उसके बेसिस पर हमको रिएक्टेंट के अमाउंट को एनालाइज करना है। हाँ सर, एक क्वेश्चन था It सर, is मतलब अगर हमें एक कोई सेकेंड अननोन रुक जाना। हाँ रिएक्शन बोलो। दिया है, सॉरी, हाँ बोलो। सर अगर हमें कोई अननोन रिएक्शन दिया है हाँ, और मतलब वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, तो फिर सर हम लोग को मतलब पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रेसिपिटेट है? अरे अभी कैसे पता चलेगा यार, अभी तो तुम बच्चे हो ना। जैसे जैसे तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता चलेगी तुमको पता चलेगा। प्रोडक्ट्स, कंपाउंड्स तुमको पता ही नहीं है तो तुमको कंपाउंड्स के नेचर का पता नहीं है, तुमको कंपाउंड्स पता नहीं है तो तुमको कैसे सपने में थोड़ी आ जाएगा कि ये प्रेसिपिटेट है ये प्रेसिपिटेट नहीं है। इट विल कम विथ नॉलेज, ठीक है ना। प्रोग्रेसिवली आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स वगैरह बताए जाएंगे, देन यू विल कम टू नो कि ओके, जैसे अभी मैंने बताया कि कार्बोनेट एंड सल्फेट बैरियम का जो है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। तो इट्स नॉट ओनली बैरियम, बैरियम के साथ साथ कैल्शियम, फिर तुम्हारा स्ट्रॉन्सियम, ये सब जो है मतलब ग्रुप 2 वाले जितने भी कार्बोनेट एंड सल्फेट है ना, दे ऑल आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। ऊपर वाले दो जो हैं वो थोड़े से कम, मतलब वो थोड़े डिसॉल्व होते हैं, जैसे जैसे अपन नीचे आते जाते हैं दे बिकम इनसॉल्युबल, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन आपको एक और पता चला है, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे आपको, उसके बेसिस पर ही तो मतलब ऑब्वियसली तभी आपको पता रहेगा कि विच वन इज। हाँ, यू कैन लीव सृष्टि, वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश, लाइक 5 मिनट में, मतलब यही चीज आखिरी बता रहा हूँ। इसके बाद आज कुछ नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक नेक्स्ट लेक्चर में ही कराऊंगा। सो इट्स डन ऑलरेडी, यू कैन लीव। Thank you, sir. सर आप इसके बाद एक बार लास्ट टाइम से शॉर्ट में कंडक्टोमेट्रिक कंडक्टोमेट्री का भी नहीं बताऊंगा। ये तो पता है वो प्लास्टिक ना। सर फिर क्या हुआ? सर वो मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे और हाँ ऑब्वियसली आगे पढ़ोगे, जब पढ़ने
उसके लिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए ना, वो पता ही नहीं है तुमको, तो तुमको बहुत सारी चीजें पढ़ानी पड़ेंगी मुझे ना, तो इट विल बिकम टू, फिर 2 और चैप्टर पढ़ने पड़ जाएंगे हम लोगों को इसके बीच में। तुम लोग को पढ़ना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा। The PPT forming reaction in which other product formed is precipitate or a reactant being consumed as a line sector so we examine solve it or concept constant proportion so ratio ठीक है। सर और मिथेनोइक एसिड सबसे वीकेस्ट एसिड रहता ना? ये किसने बोल दिया? फिर COOH सर, ये मतलब नहीं, मोस्टली सारे इसमें इनफैक्ट वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे बाकी एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक, ये सारे इससे कम एसिडिक रहेंगे। ठीक है सर, इसका इन फैक्टर 1 रहेगा ना, क्योंकि 1 क्या क्या? हाँ, इसका एन फैक्टर 1 सर रहेगा। इसका एन फैक्टर 1 रहेगा। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के एन फैक्टर 1 रहेंगे। ऑक्जेलिक का 2 रहता है क्योंकि उसमें इस तरह की 2 एंटिटीज रहती हैं। ठीक है, ऐसे जितने होंगे किसी मॉलिक्यूल में उतना उसका एसिडिटी होएगा, सॉरी बेसिसिटी होएगा या एन फैक्टर होएगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके, सो वी विल सर आपने अपना मतलब बीच में सर, एकदम बीच में तो आप पढ़ा रहे थे सर, तब है ना आपने एक N2CO3 प्लस HCl का एग्जाम्पल नहीं सुनाई दिया, सर, फिर से उसमें बोलो, आपने फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया मुझे। सर आप मतलब जब पहले पढ़ा रहे थे यही लेक्चर में Na2CO3 प्लस HCl gives NaCO3 प्लस NaCl का एग्जाम्पल दिया था सर। उसमें आपने बोला था कि NaHCO3 जो है वाटर में थोड़ी देर के बाद जो है वो मतलब वो वापस डिफरेंट मतलब वो वापस टूट जाता है Na प्लस और HCO3 माइनस में, तो दोनों एक्टिव होते हैं। और तो फिर सर जो Na प्लस HCO3 माइनस होगा सर वो एसिडिक होगा ना, जो मीडियम मतलब जो नहीं, वो प्रोडक्ट होगा। एसिडिक बहुत ही माइल्डली एसिडिक होता है। एक्चुअली एसिडिक बेसिक वो बहुत ही माइल्डली एसिडिक होता है या स्लाइटली बेसिक होता है। आई थिंक बाइकार्बोनेट वाला जो होता है, बाइकार्बोनेट इज, रुक जाओ, सर बिकॉज एक HCO3 इज सेकेंड नथिंग रुक बट जाओ। एक मिनट रुकिए, बताता हूँ मैं वो क्या रहेगा एग्जैक्टली, मैं बता दूँ, अभी बता रहे। पी के थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है।
नहीं, बेसिक रहेगा। हेलो सर हाउ? अब वो रहेगा यार, हाउ का आंसर तुमको अभी नहीं मिल पाएगा। इट हैपेंस टू बी बेसिक। हाउ का सर आंसर तुमको क्या हो बोल रहे हो? सर कौन बेसिक रहेगा? NaHCO3 जो होगा वो बेसिक रहता है, माइल्डली बेसिक रहेगा बट बेसिक रहेगा। हाँ सर था ये, मतलब 10th। क्या कहाँ पे था? सर नहीं, सर ये टेक्स्ट बुक में 10th एक में बार पढ़ाया पढ़ा था, था। बट मेरे को ये डाउट कि था कि HCO3 माइनस जो है वो एक हाँ और प्लस। नहीं, तो वो सारे डाउट्स अभी के लिए रहने दो, वो अभी क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी पूछोगे तो वो बता भी नहीं सकता हूँ मैं। दैट नॉलेज विल कम टू यू इन ड्यू प्रोसेस और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बाय द टाइम वी विल बी समवेयर इन October, you will be aware of those facts. Don't worry. ठीक है ना? यस सर। अभी परेशान होगे तो वो चीजें क्लियर नहीं हो सकती, बट हाँ, या इवेंचुअली इट विल गेट क्लियर। सर बोलो ना। सर मुझे इस पूरे चैप्टर में ना सर मुझे 2 डाउट्स थे, लेकिन सर वो मतलब डाउट लेक्चर में क्लियर होना। पूछ लो, मतलब क्या बड़े डाउट्स हैं, छोटे डाउट्स हैं? हाँ सर नहीं बड़े थे। ठीक है, तो फिर डाउट लेक्चर में पूछो। सर एक तो वो ये था सर, पहले हम सॉल्व कर रहे थे, देखो वो सर वो एक था ना कि मोलिकुलर वेट इनटू सर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 6। सर उसके टाइप के सम्स कर रहे थे, उसके अंदर से एक डाउट था, और दूसरा सर बैलेंसिंग में एक डाउट था। ठीक है, डाउट लेक्चर्स में कर लेंगे। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर आपने ग्रुप पर ये टाइम टेबल भेज दिया था? नहीं, अभी नहीं भेजा है, अभी बनाया ही नहीं है इस वीक वाला, अभी बनाऊंगा। अच्छा सॉरी सर, क्योंकि नहीं, मुझे बट लगा कि मोस्टली भेज दिया, वही लेकिन रहेगा। एक सेकंड, मोस्टली आप लोग का वही रहेगा। आप लोग के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। इट्स गोइंग टू बी, मैं बता देता हूँ। मैं बना के भेज दूंगा, बट टेंटेटिवली क्या है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। टेंटेटिवली क्या फिक्स नहीं है। ट्यूसडे को हाँ 8 to 10:30 मैथ्स रहेगा, और 11 से 1:30 फिजिक्स रहेगा कल। वेडनेसडे फिर मेरा पूरा रहेगा। थर्सडे को 8 to 10:30 मैथ्स रहेगा, और 11:45 से मेरा रहेगा थर्सडे को। फ्राइडे को फिर से पहले मैथ्स रहेगा, फिर फिजिक्स रहेगा, मेरा नहीं रहेगा। सैटरडे को मॉर्निंग में मैथ्स वाले सर का रहेगा, और फिर बाद में मेरा रहेगा सैटरडे को। सैटरडे को सर एरर होएगा ना? हाँ, सैटरडे को एरर एनालिसिस रहेगा, और वो लास्ट लेक्चर रहेगा। मतलब इस हफ्ते होता तो वही लास्ट लेक्चर हो जाता, अदरवाइज वो लास्ट लेक्चर रहेगा। एंड तब तक सर भी अपना इंटीग्रेशन वगैरह खत्म कर चुके होंगे, तो इंटीग्रेशन का हम लोग एक बार कर लेंगे। उसके बाद फिर फिजिक्स वाले लेक्चर्स थोड़े से बढ़ने लगेंगे, 3 लेक्चर फिजिक्स से हो जाएंगे। एंड एक लेक्चर सॉल्विंग वाला रहेगा। शुरू में 3 लेक्चर रहेंगे, और फिर बाद में 2 लेक्चर हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा कॉन्सेप्ट ना, जब सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट हो जाएंगी चीजें, तब 2 लेक्चर रहेगा इसका, और 2 लेक्चर सॉल्विंग का। ठीक है। सर ऐसे अभी हमारी कोई टेस्ट होने वाली है मतलब? हाँ, अब होने वाली है। नाउ यू विल बी लाइंड अप इन टेस्ट। अभी तक फ्री थे थोड़े से तुम लोग, बट नाउ इट इज गोइंग टू बी। मैथ्स में एक चैप्टर खत्म हो चुका है आप लोग का, क्वाड्रेटिक, और केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा अगले हफ्ते में। फिजिक्स वाला थोड़ा सर सा मैथ्स में 2 टॉपिक्स बाकी है, मॉड्यूलस फंक्शंस और जीआईएफ फंक्शन। कौन सा? मॉड्यूलस फंक्शन और जीआईएफ फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन और जीआईएफ। कहाँ बाकी है? सर बोले कि नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे।
मतलब वो रह गया था ये 2 टॉपिक्स बस, बाकी सब कुछ नहीं तो खत्म हो अभी वो गया। चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रहे थे ना। हाँ सर बोले कि उसी के अंदर है। ठीक है चलेगा, तो वो कराएंगे तो इस हफ्ते में करा के खत्म करेंगे ना। सर रफली मतलब कभी होगा, इसी मंथ में होगा नहीं इस टेस्ट? मंथ में नहीं होगा, जून में नहीं होगा, जुलाई में सेकेंड वीक सेकेंड संडे जो होगा ना वहां से आप लोग का टेस्ट चालू हो जाएगा। जुलाई सेकेंड संडे से, फर्स्ट संडे नहीं सेकेंड संडे से। सर मतलब ऑब्जेक्टिव या हाँ फिर ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, वो हाँ, पेपर पैटर्न में आप लोग को बता दूंगा, मतलब डोंट वरी। सर नहीं मतलब ऑब्जेक्टिव या फिर सर वो मतलब थियरी दो। इट विल बी मिक्स्ड, इट विल बी मिक्स्ड। थियरी मतलब लिखने के लिए थियरी नहीं रहेगा, थियरी क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हाँ सर मतलब वही। हाँ तो थियरी क्वेश्चन भी रहेंगे, सॉल्विंग के लिए भी रहेगा। ओके सर। ओके सर थियरी क्वेश्चन आई मीन लाइक